हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय स्टेट ऑफ अ सिस्टम एज वेल एज व्हाट इज मीन बाय स्टेट वेरिएबल्स। अभी इसके आगे जाके आज हम शुरू करेंगे। तो द टर्म फॉर टुडे इज द प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या होता है प्रोसेस? देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग द वेरिएबल्स सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। और मैंने आपको कहा था कि समझो प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, टेम्परेचर है T1 एंड नंबर ऑफ मोल्स है N1। So now this is nothing but it's a set of variables: pressure, volume, temperature, number of moles। ये जो पूरा है ये है स्टेट ए। ये हमने देखा था। अगर इसमें से इन वेरिएबल्स में से एक या दो वेरिएबल चेंज हो जाएंगे तो there is a change in the state of a system। For example, pressure हो जाएगा P2, वॉल्यूम हो जाएगा V2, टेम्परेचर हो जाएगा T2 and number of moles हो जाएंगे N2। Now this is another set of variables। ये है state B of a system। अभी ये जो चेंज होगा, ये चेंज तो अपने आप तो नहीं होगा। इसके लिए हम जो भी कुछ ऑपरेशन करेंगे या फिर पाथ फॉलो करेंगे, दैट इज नोन एज अ प्रोसेस। सो यहां पे आएगा वो टर्म जिसे हम कहेंगे प्रोसेस। क्या होता है प्रोसेस? नाउ इट इज द पाथ और the operation by which system changes from one state into another state. It is a path or the operation by which system changes from one state into other state. Now there are different types of processes here. Let's see here types of process. First one is isothermal process. Now see the meaning of the term iso. Iso का मतलब क्या होता है? Same. And thermal means what here? Temperature. So the process in which temperature of the system remains constant throughout is known as isothermal process. So the process in which temperature of system remains constant throughout, it's called isothermal process। Now टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब समझो डेल्टा टी अगर हम यहाँ पे लेते हैं, डेल्टा टी का जो मतलब होता है, डेल्टा स्टैंड्स फॉर डिफरेंस हियर, तो T2 minus T1 means here the temperature of the final state
minus temperature of the initial state and the temperature of the system will remain constant. तो डेल्टा टी का जो वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे T1 इज इक्वल टू हो जाएगा T2. सो डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0. सो दिस इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस. मैंने कहा था आपको कि हर जगह पे आपको देना पड़ेगा एग्जांपल. इसका जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आई विल राइट हियर, यस, बॉइलिंग पॉइंट of pure liquid. Yes, if you see the liquid is pure, then its boiling point will be fixed. For example, boiling point of pure water is 100 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. So इसमें ये इसका एग्जांपल हो जाएगा isothermal process का. Now the next topic, I mean the next point is here is isobaric process. Yes, iso means same and the bar means here pressure. So the pressure of the system will remain constant here. So the process in which pressure of the system remains constant throughout is known as isobaric process. You may note down also. The process in which pressure of system remains constant throughout is called as isobaric process. So here will be delta P term. Delta P is equal to P2 minus P1. As the temperature, as the pressure is remaining constant here, so delta P का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0. So delta P का जो टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. So these terms are very very important for us. Delta T 0 कब होगा, delta P कब 0 होगा, ये हमें न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा. सो अभी इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, यस, द केमिकल रिएक्शन in the lab are done at constant atmospheric pressure, जो कि होता है 1 एटमॉस्फेयर. सो जितने भी केमिकल रिएक्शन हम लोग लैब में करते हैं उनके सबके लिए क्या होगा, प्रेशर तो वही रहेगा, इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर. सो डेल्टा पी इज 0 फॉर दिस प्रोसेस. इसके आगे यहाँ की जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये है आइसोकोरिक प्रोसेस. Yes, the process in which volume of the system remains constant throughout. The process in which volume of system remains constant throughout is known as isobaric process. इसके लिए डेल्टा V, that is V2 minus V1, yes, its value is equal to 0. डेल्टा V का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 0, याद रखिएगा, डेल्टा V. एग्जाम्पल क्या देंगे इसका, yes, if the gas is allowed to expand in
closed container, then it is known as isochloric process. देखिए अगर कंटेनर क्लोज है, so there is no scope for the increase in the volume. So the change in the volume value will be 0 for isochloric process. इसके आगे जो 4 टाइप है प्रोसेस का, ये है adiabatic process. Yes, the process in which there is no heat exchange between the system and the surrounding is known as adiabatic process. The process in which there is no exchange of heat between the system and the surrounding. आपको याद होगा हमने लिखा था प्रीवियस लेक्चर में, द सिस्टम जिसमें हीट एंटर भी नहीं होता है और बाहर भी नहीं जाता है सिस्टम से, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? यस, वी कॉल इट एज अ आइसोलेटेड प्रोसेस. सेम हियर, तो यहाँ पे जो इसका डेफिनेशन है ये आएगा कुछ इस तरीके से, द प्रोसेस in which no heat is exchanged between system and surrounding is called adiabatic process. So Q is equal to 0 यहाँ पे आएगा. यहाँ पे हम सिंबल यूज करेंगे Q, जो यहाँ पे Q है, the Q stands for heat absorbed by the system. So I will write here Q, here heat absorbed by the system. देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि हम हमेशा सोचेंगे एज अ सिस्टम पर्सपेक्टिव. हमें सोचना है सिस्टम के बारे में, सिस्टम के अंदर अगर हीट आता है या फिर बाहर जाता है. सो एवरीथिंग वी हैव टू थिंक फॉर द सिस्टम पर्सपेक्टिव ओनली, दैट यू हैव टू रिमेंबर. आप ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए तब तक. ओके, मैं चाहूंगा आप उसको अच्छे से नोट डाउन करो. यही हमारे लिए नोट्स है, ये आपके लिए काम आएंगे. हाँ, तो अभी हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल देना अभी बाकी है. आई टोल्ड यू फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ Q is equal to 0 where Q is heat absorbed by the system. इसका एग्जांपल क्या देंगे आपको? यस, फॉर एग्जांपल हॉट लिक्विड kept in thermos flask is an example of adiabatic process. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो तो कांस्टेंट रहेगा. Actually means the temperature of the liquid is not a constant, sorry. तो एज द टेम्परेचर डिपेंड करेगा रिएक्शन पे. फॉर एग्जाम्पल अगर समझो सिस्टम में जो रिएक्शन हो रहा है, अगर वो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इट विल इंक्रीज. And if the system has endothermic reaction, then the temperature of the system will decrease. So remember, there are two conditions. If the system is having the exothermic reaction, temperature of the system it will increase. And here
for endothermic reaction, temperature of the system it will decrease. So this we have to remember for the adiabatic process. ये हमारा 4 टाइप का प्रोसेस का. इसके बाद में जो है प्रोसेस, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. Yes, the process in which system undergoes many changes and returns to its initial state is known as a cyclic process. The process in which system undergoes many changes but returns to its initial state is known as a cyclic process. मतलब यहाँ पे ये जो है सिस्टम जो है ये पूरा साइकिल पूरा करेगा. That is the known as the cyclic process. So I will have definition here. The process in which system undergoes many changes and returns to its initial state is called as cyclic process. इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू होगा 0. Remember delta H stands for enthalpy change, change in the enthalpy. Enthalpy मतलब total heat content of the system. इसके बारे में हम लोग बाद में देखने वाले डिटेल में. डेल्टा एच यहाँ पे हो जाएगा 0 एंड डेल्टा यू. सो यहाँ पे जो यू रहेगा, यू इज अ सिंबल फॉर इंटरनल एनर्जी. दैट्स व्हाई डेल्टा यू यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. ये भी हम बाद में देखने वाले हैं डिटेल में. सो दिस इज द फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोसेस नोन एज अ साइक्लिक प्रोसेस. आई टोल्ड यू दीज आर द important things you have to remember and that are important because numericals में हमें ये काम आएंगे. तो ये है 5 टाइप के प्रोसेस. इसके अलावा 2 और प्रोसेस है. नेक्स्ट वन इज नाउ रिवर्सिबल प्रोसेस. And then we have to see what is mean by irreversible. Process. Now look at this. समझो यहाँ पे स्टेट ए और स्टेट ए से स्टेट बी तक जाने के लिए जो फोर्स उस प्रोसेस को मतलब सिस्टम को ए से बी तक ले जाने के लिए ड्राइव करेगा, इसे हम कहेंगे यहां पे ड्राइविंग फोर्स. द फोर्स इट विल ड्राइव द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. एट द सेम टाइम इसे अपोज करने वाला भी फोर्स यहां पे होगा. आई विल राइट इट एज अ अपोजिंग फोर्स जो स्टेट ऑफ सिस्टम ए को बी तक ले जाने के लिए अपोज करेगा. इसे हम कहेंगे अपोजिंग फोर्स. अगर इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, सो उसके लिए एक वर्ड है हमारे पास. वी हैव टू राइट इट लाइक दिस. यस, द प्रोसेस इन विच driving force is only infinitesimally greater than the opposing force. The process in which driving force is only infinitesimally greater than the opposing force and its direction can be reversed
at any stage during the course of reaction. कैसे? Just by increasing the opposing force with a very very small amount, that is known as a reversible process. The process in which driving force is only infinitesimally greater than the opposing force and its direction can be reversed at any stage by increasing the opposing force with a small amount is known as reversible process. अगर देखा जाए तो ये प्रोसेस आइडियल होता है, इट्स नॉट अ रियल प्रोसेस. सो आई लाइक हियर द features of the reversible process. As I told you, it is an ideal process. ये जो प्रोसेस होगा, it is non-spontaneous. So the process is non-spontaneous. देखो अभी इस साल पूरे कोर्स में हमें देखना पड़ेगा बार बार स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस के टर्म्स. जो प्रोसेस अपने आप होगा दैट इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस. फॉर एग्जांपल वाटरफॉल, अगर पानी ऊंचाई से गिरता है नीचे, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स अ रियल प्रोसेस. नेचुरल प्रोसेस और रियल प्रोसेस मतलब होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अगर हमने कुछ आइस क्यूब्स लिए डिश में, उनको रखा तो वो मेल्ट हो जाएंगे अपने आप. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज नोन एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और जो चीजें नेचुरल नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल लीजिए आपको कुएं में से पानी ऊपर निकालना है, तो इसके लिए आपको पंप लगाना पड़ेगा, मोटर पंप लगाना पड़ेगा, तब जाके कुएं का जो पानी है ये ऊपर आ सकता है. लेकिन इसके लिए मतलब ये जो कुआ यहाँ पे प्रोसेस हुआ है ये नेचुरल नहीं है, ये क्या है, ये है नॉन स्पॉन्टेनियस. तो नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब आया समझ में, इट्स नॉट अ रियल, मीन्स इट इज जनरली मेड टू कैरी. और मतलब ये हमें करना पड़ेगा तब जाके होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. सो इट्स आइडियल प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड इट टेक्स प्लेस इन स्टेप्स. ये जब भी होता है बहुत सारे स्टेप्स पे होता है. It takes place in infinite number of steps. Then it is extremely slow process. बहुत ही यहाँ पे ये स्लो प्रोसेस होगा. स्लो प्रोसेस होगा इसलिए इसी प्रोसेस में हमें मैक्सिमम वर्क भी मिलेगा. मैक्सिमम वर्क can be obtained. So maximum work can be obtained in the reversible process. और एक बात, मैकेनिकल equilibrium can be obtained at every stage. ये है इसके कुछ फीचर्स. सो व्हाट इज फर्स्ट वन? इट इज आइडियल प्रोसेस, इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस, मीन्स नॉट नेचुरल. इट टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. इट्स अ एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस. मैक्सिमम वर्क कैन बी ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्टेन एट एवरी स्टेज. तो ये सब आएगा इन द रिवर्सिबल प्रोसेस. नाउ सी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया: थर्मल इक्विलिब्रियम, then मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. तो ये तीन टाइप के यहाँ पे रहेंगे इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इज सिंगुलर एंड इक्विलिब्रिया इज प्लूरल. So there are three types of equilibria:
थर्मल, मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल। इसके बारे में हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में। नाउ ये है इसके फीचर्स। जो लास्ट टाइप का प्रोसेस हमारा है वो है इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ द प्रोसेस in which driving force is significantly large than the opposing force. So here remember, significantly. So the process in which driving force is significantly larger than the opposing force and hence its direction cannot be reversed is known as irreversible process. The process in which driving force is significantly larger than the opposing force and its direction cannot be reversed at all is known as a irreversible process. अभी अगर देखा जाए तो इनके ऑपोजिट हमें लिखना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस। ये था आइडियल प्रोसेस, ये है रियल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस। इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये यहाँ पे क्या आएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेचुरल, रियल, स्पॉन्टेनियस मतलब एक ही होता है। इट टेक्स प्लेस इन infinite number of steps. It takes place only in a one step. It is slow process. It is fast process. ये इसमें क्या रहेगा? Maximum work can be obtained. Here maximum work cannot be obtained. And here the last point, mechanical equilibrium can be obtained at every stage. तो यहाँ पे ये हमको कब मिलेगा? At the end of the process. ये डिफरेंस के एटलीस्ट में आपको 6 पॉइंट बोले हैं। डिफरेंस भी आता है, 2-3 बार तो आ भी चुका है बोर्ड में, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर डिफरेंस दोनों का। कैन राइट आल्सो। इससे पहले हम आगे देखेंगे ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। लिख लिया आपने? ओके। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज मीन बाय स्टेट फंक्शन एंड व्हाट इज मीन बाय पाथ फंक्शन। यस, स्टेट फंक्शन the properties of the system whose values depends only on initial state and the final state of a system is known as a state function. The properties of the system whose values depends only on initial state and the final state of a system are known as state function. जो स्टेट था इनिशियली और जो स्टेट अब फाइनल में है और एक ऐसे करंट स्टेट, इनके बारे में जो बोलेगा इट इज नोन एज अ स्टेट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, देन एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड एज वेल एज इंटरनल एनर्जी, ये सब एग्जांपल्स है स्टेट फंक्शंस। इनके जो वैल्यूज है इमेजिन कीजिए, यहाँ पे मैं करता हूं ग्राफ और प्रेशर और यहाँ पे है वॉल्यूम। समझो यहाँ पे है स्टेट ए
और यहाँ पे ये है स्टेट बी। इमेजिन स्टेट ए से स्टेट बी तक के लिए जो यहाँ पे चेंज हो गया है, इसके लिए इसमें ये है पाथ 1, ये है पाथ 2 और ये है पाथ 3। यहाँ स्टेट ए में जो प्रेशर है वो है P1 एंड वॉल्यूम इज V1। यहाँ पे प्रेशर है P2, वॉल्यूम इज V2। Now look at this, ये है इनिशियल स्टेट एंड ये है फाइनल स्टेट। You can see it properly. चाहे मेरे पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 या फिर ये पार्ट 3, इनमें से कोई भी पार्ट अगर फॉलो करता है सिस्टम, तो फाइनली उसको स्टेट बी तक आना है। यहां पे डेल्टा P या फिर डेल्टा V का वैल्यू बिल्कुल सेम होगा, चाहे वो पार्ट कौन सा भी क्यों ना हो। Either path 1 is there, path 2 is there और path 3 is there। इनमें से कोई भी अगर एक पाथ फॉलो करता है सिस्टम, तो फिर भी डेल्टा P और डेल्टा V का वैल्यू वही आएगा। सो ऐसे जो होते हैं प्रॉपर्टीज, इन्हें हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम whose values depends on initial state and the final state of a system and not on the path followed are known as a state function. So the properties of system whose values depends only on initial and final state of system only and not on path followed are called as state functions. For example, pressure, temperature, volume, enthalpy, entropy, as well as internal energy। ये सब के सब एग्जाम्पल्स है स्टेट फंक्शन के। रिमेंबर, their value will depend only on initial state and the final state and not on the path followed। इन्हें हम लोग कहते हैं state function। Then the next one is path function। The properties of the system whose value depends on the path followed are known as path functions। For example, work and heat। ये है दोनों इसके एग्जाम्पल। आगे कुछ हम देखेंगे डेरिवेशंस जहां आपको समझ में आएगा कि वर्क डन कैन बी ऑब्टेन डिफरेंट फॉर डिफरेंट थिंग्स, आई मीन डिफरेंट पार्ट्स। तो इसके लिए हमें डेरिवेशन देखने हैं, तो इसमें आपका एक पॉइंट पूरा हो जाएगा क्लियर। फिलहाल जो डेफिनेशन है इसका पाथ फंक्शन का, ये आएगा कुछ इस तरीके से। द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम whose value depends on the path followed are called as path functions। are called as path functions। अब इसके बाद then the next topic is here thermodynamic equilibrium। Now see, a system is said to be
in a thermodynamic equilibrium where any of its state functions do not change with the time. So I write here a system is said to be in thermodynamic equilibrium when any of its state functions do not change with time. For example, मान लीजिए it is a vessel or a cylinder is there जिसके अंदर हमने गैस फिल करके रखा है. Suppose there is a gas enclosed in the cylinder. समझो यहाँ पे इसके n नंबर ऑफ मोल्स है. यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये है सपोज वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन. पिस्टन मतलब जो ऐसे ऊपर नीचे मूव होगा. एज द गैस विल एक्सपांड द पिस्टन विल मूव इन द अपर डायरेक्शन. अभी ये जो गैस अंदर रखा है समझो इसका प्रेशर समझो इसका है P, इसका वॉल्यूम समझो है V. As long as the pressure is P, volume is V, number of moles are also there fixed. ये प्रेशर ऐसा ही रहेगा तब तक ये जो सिस्टम है it is in equilibrium. But as soon as the piston will move upward due to expansion, now the system is no more in the thermodynamic equilibrium. मैंने कहा आपसे अगर यहाँ पे होता है एक्सपांशन गैस का तो ये जो पिस्टन है ये अपने आप ऊपर मूव हो जाएगा. जब भी हो जाएगा कॉम्प्रेशन तब ये पिस्टन आएगा नीचे. अक्सर होता यही है कि ये अगर इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाए इसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल प्रेशर. तो इसे क्या हो जाएगा पिस्टन विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अभी सराउंडिंग जो है अगर इस पिस्टन पे अगर फोर्स अप्लाई करेगा तो पिस्टन नीचे आएगा. बट इफ द सिस्टम विल परफॉर्म द वर्क कैसे अगर होता है एक्सपांशन. जो भी होगा एक्सपांशन वो होगा उस गैस की वजह से. गैस एक्सपांड होगा. अभी यहाँ पे जो गैस है वो यहाँ पे हमारे लिए क्या है सिस्टम है. सो एज द एक्सपांशन विल टेक्स प्लेस the piston will move in the upward direction. So as I told you, as long as the gas is enclosed there having pressure P, volume V, number of moles N and the piston is fixed, it is said to be in the thermodynamic equilibrium. But when the piston will move, the system is not in the now no more in the thermodynamic equilibrium. इस तरीके से हम आपको बोल सकते हैं. As I told you, there are three types of equilibria, जिसमें से पहला है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, thermal equilibrium, and third one is chemical equilibrium.
So there are three types of equilibria as I told you: mechanical, thermal, as well as chemical equilibrium. A system is said to be in a mechanical equilibrium when no mechanical work takes place. सिस्टम भी सराउंडिंग के ऊपर कोई वर्क नहीं कर रहा है, या फिर सराउंडिंग भी सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क नहीं कर रहा है. इट इज नोन एज अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. When no mechanical work takes place, a system is said to be in a thermal equilibrium when the temperature of the system as well as that of surrounding remains constant. It is known as a thermal equilibrium. When the temperature of system and surrounding as well remains constant. A system is said to be in the chemical equilibrium when its chemical composition will not change with the time. So a system is said to be in a chemical equilibrium till its chemical composition does not change with the time. When the chemical composition does not change with the time. इस तरीके से यहाँ पे ये आएंगे, तीन टाइप के आएंगे इक्विलिब्रियम. आप ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे आपके साथ, आपके पास में चाहिए. सो नोट डाउन ऑल दिस. Remember, we have to solve the classwork and assignment sheets also. So properly आपको सब कुछ समझना है, ये सब चीजें. In case get out, you can contact me also.